Hello everyone. In last lecture, we had discussed about the pedigree analysis, right? And their science. Now, in today's lecture, we are going to discuss about some genetic disorders. So as I already told you people, कि at the end of the chapter, हम लोग disease related बात करेंगे, right? So from this lecture, we are going to discuss diseases which are genetically inherited, right? Okay, so this is lecture 18th and let's start with the genetic disorders. So mainly genetic disorders are of two types. Very first is Mendelian disorders and the second one is chromosomal disorders. Okay, so first of all we are going to discuss Mendelian disorders. Now what does it mean? So it is mainly determined by alteration or mutation in the single gene. So those diseases which are occur due to the mutation or alteration of some genes or a single gene, it is called Mendelian disorders. Okay. So most common disorders are, some example, hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, etc. This all disease we have to discuss, but one by one later on. Mendelian disorders may be dominant or recessive. So this kind of disease can occur due to the dominant allele of a gene or a recessive allele of a gene. Right? So this is how the Mendelian disorders works. Now what does it mean about dominant and recessive? So when any disease occurs due to the dominant allele, it means they need only one allele of a gene to cause the disease. क्यों? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि the dominant gene will suppress the activation of the recessive genes allele, right? अगर dominant allele present है तो वो recessive की characteristics है उसको suppress कर देगी, यानी जो भी dominant की characteristics है वही show करेगी, right? That you all know. तो अब हम इधर बात कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मींस डोमिनेंट, मतलब अगर डोमिनेंट एलील की वजह से डिसीज हो रहा है, इट मींस दैट सिंगल एलील इज इनफ, राइट? अगर एक ही एलील है डोमिनेंट प्रेजेंट है देन ऑल्सो डिसीज है वो हो जाएगा किसी भी इंडिविजुअल को. इफ द डिसीज इज रेसेसिव, इट मींस कि दोनों रेसेसिव एलील हैं अगर, देन एंड देन ओनली दिस डिसीज कैन अकर. क्यों? क्योंकि मान लो एक रेसेसिव एलील है जो कि डिसीज कॉजिंग है, दूसरा अभी डोमिनेंट भी होता है प्रेजेंट, तो जब तक डोमिनेंट एलील है, नॉर्मल डोमिनेंट एलील, तब तक वो रेसेसिव की एक्टिविटी शो ही नहीं करने देगा. तो मान लो एक रेसेसिव एलील अगर कुछ म्यूटेटेड जीन का रेसेसिव एलील है, देन ऑल्सो द डिसीज कैन नॉट अकर, क्योंकि दूसरा जो डोमिनेंट एलील है वो तो नॉर्मल है, राइट? तो अगर रेसेसिव एलील से डिजीज होता है कोई भी, देन इट नीड्स टू recessive alleles, otherwise that disease cannot happen, right? Hope you understand. So this is how the name called dominant Mendelian disorder and recessive Mendelian disorder. ठीक है, तो डोमिनेंट का मतलब आपको समझना है कि उसमें एक ही एलील इनफ है डिसीज कॉज करने के लिए, while in case of recessive Mendelian disorders it needs must two alleles. If there is no two recessive alleles present, then that person can be only carrier but not affected individual. Okay, so let's start with the first disease. It is color blindness. Okay, so as per its name you can have an idea that color blindness मतलब क्या, कुछ color के related blindness होनी चाहिए. So here in this kind of disease, red and green color blindness is most common. इट मीन्स द इफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी जिसको डिसीज हुआ है, उनको रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनको ये कलर नहीं दिखते हैं. वाई? सो दैट कोन्स ऑफ द आई जो प्रेजेंट होते हैं हमारी आई में कलर के लिए, उनमें कुछ उनको बनाने के जो जीन्स होते हैं उनमें कुछ डिफेक्ट होती है. दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ डिसीज कैन अकर. सो इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, ये आपको समझना है अभी रेसेसिव का मतलब क्या है. सो ये डिसीज होने के लिए दोनों रेसेसिव एलील किसी इंडिविजुअल में होने चाहिए, तभी जाके ये डिसीज होगा. ठीक है. नाउ ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ अ आई,
रिजल्ट इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर. ठीक है, तो अगर रेड कौन या तो ग्रीन कौन आई के उनमें कुछ डिफेक्ट है, देन दैट पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू कलर्स. दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, ये जो भी ये कलर के जीन्स होते हैं कौन के आई के, वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. दैट इज वाई हियर वी रोट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम. सो ये एक्स क्रोमोसोम में ये जीन से वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ एज यू ऑल नो कि एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है ना. सो इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल्स while only 0.4% ऑफ फीमेल्स. अब ये डिसीज है वो 8% जितने मेल में देखने को मिलता है, while only 0.4% ऑफ फीमेल्स. अब ऐसा क्यों, ये डेविएशन क्यों? सो बिकॉज जैसे कि इधर आप देख रहे हो ये एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं इसके डिसीज के. ठीक है, यानी म्यूटेटेड वन. जैसे कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो मान लो एक एक्स क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स है वो डिफेक्टेड हो गए, बट दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे तो नॉर्मल होंगे. सो देयर इज वेरी वेरी रेयर चांसेस कि फीमेल में ये डिसीज हो, क्योंकि उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, जबकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वो भी मान लो डिफेक्टेड जीन वाला है, देन इट मीन्स उनको ये डिसीज है वो सीधा ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनके पास कुछ बैकअप क्रोमोसोम्स है नहीं, दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता नहीं है. राइट, सो दैट इज वाई फीमेल में बहुत ही कम चांसेस है. वैसे जेनेटिक डिसऑर्डर से वो बहुत ही रेयर ही होते हैं, फ्रिक्वेंट देखने को नहीं मिलते हैं. राइट, बट ये तो उसमें भी रेयर है फीमेल में स्पेशली. वाई, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक्स क्रोमोसोम है वो अगर एक डिफेक्टेड जीन वाला है तो भी दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल होता है फीमेल में, तो उनमें ये एक्टिविटी है डिसीज की वो सप्रेस हो जाती है. बट वाइल इन केस ऑफ मेल दे हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड इफ इट इज अ डिफेक्टेड genes, if it having a defected genes, then it means the disease can occur in them. Right, so that is why this ratio is there. So आपको ये रेशियो से वो सारे MCQ के लिए भी याद रखने. See now this kind of topic आपको उसमें से प्रिपेयर करना है अगर MCQ के लिए, then what you need to highlight. So the scientist name, then which kind of genes are affected or which kind of chromosome involved in that disease, and the disease is what about. ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है वो आपको सारे डिसीज जितने भी हम इस लेक्चर से आगे जितने भी पढ़ेंगे उन सब में आपको ये चीज़ें MCQ के लिए खास ध्यान देनी है, ताकि आप थियोरेटिकल MCQ एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स MCQ है वो इजीली सॉल्व कर पाओ. राइट, नाउ तो ये रेशियो क्यों है उसके बारे में बात करते हैं. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम. So males have only 1 X chromosome and females have 2 X chromosome. That is why it is very rare in case of female. Now the probability of this disease, let's talk about that. The son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being color blind. यानी अगर ये डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है मदर में, देन उनके बेटे को यानी ऑफ स्प्रिंग में अगर लड़का है तो उसको 50% चांसेस है ये डिसीज होने के. क्यों? क्योंकि मेल है तो उसमें वाई क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, फादर में से. राइट, और एक्स है वो कहाँ से आएगा, मदर में से. तो अगर मदर के 2 एक्स क्रोमोसोम है उनमें से एक डिफेक्टिव है तो देर इज अ 50% चांस कि डिफेक्टेड वाला है वो आ जाए. देन इट मीन्स मेल में तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम चाहिए डिफेक्टेड डिसीज होने के लिए, तो उसको यानी उसके बेटे को सीधा ही ये डिसीज है वो हो जाएगा. राइट, सो द फोकस द प्रोबेबिलिटी ऑन दैट. राइट, आपको ये फोकस करना है प्रोबेबिलिटीज पे, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे MCQs देखने को मिलेंगे, स्पेशली दिस डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस. उसके रिलेटेड आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक में देखोगे बहुत सारे MCQs आपको मिलेंगे. सो यू नीड टू फोकस फर्स्ट कि ये कैसी तरह से किस तरह से ये डिसीज है वो होते हैं. राइट, तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि मेल में एक ही डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम चाहिए डिसीज होने के लिए, वाइल इन केस ऑफ फीमेल दोनों होने चाहिए, क्योंकि अगर एक नॉर्मल है देन उनको डिसीज नहीं होगा बट दे कैन बी अ कैरियर. ओके, सो इन दिस केस द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रेसेसिव, है ना. मदर को खुद को डिसीज नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ कैरियर है, वो ये डिफेक्टेड जीन पास तो कर सकती है बट उनको खुद को डिसीज नहीं है, क्योंकि उनके पास एक तो नॉर्मल है ना X chromosome. That means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene.
ठीक है, क्योंकि उनमें दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम है, तो दूसरे डोमिनेंट जीन से फीमेल में तो वो सप्रेस हो गई डिसीज की एक्टिविटी, यानी मदर को खुद को ये डिसीज नहीं है. A daughter will not normally be color blind unless her mother is a carrier and her father is a color blind. तो डॉटर के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस बहुत ही कम है. क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या होना पड़ेगा, तो उनके फादर को कलर ब्लाइंड अगर है और मदर भी कैरियर है, यानी उनका भी एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, देन एंड देन ओनली चांसेस इज देयर कि डॉटर है उनको कलर ब्लाइंडनेस हो या तो फिर वो कैरियर हो. क्यों? क्योंकि फादर में तो एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टेड ही है, राइट, क्योंकि तभी उनको कलर ब्लाइंडनेस है. तो फादर का जो एक्स क्रोमोसोम आएगा डॉटर में वो तो डिफेक्टिव ही आया. ठीक है, अब मदर में से मान लो नॉर्मल आता है, देन वो डॉटर है वो कैरियर हो जाएगी. बट अगर मदर में से भी वो डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आ गया, यानी फादर एंड मदर दोनों में से डिफेक्टिव एक एक एक्स क्रोमोसोम आ गए, देन इट मीन्स वो डॉटर है जो उनकी, उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी. और अगर मदर में से नॉर्मल एक्स आ रहा है, देन इट कैन बी अ कैरियर. ठीक है, तो अगर किसी डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस होना है, देन इट मीन्स बोथ पेरेंट है, उसमें भी फादर है वो कलर ब्लाइंड हो अगर, और मदर है वो एटलीस्ट कैरियर हो, कलर ब्लाइंड नहीं तो एटलीस्ट कैरियर हो, देन एंड देन ओनली चांसेस आर देयर कि डॉटर है उनमें 50% चांसेस रहते हैं उनके कलर ब्लाइंड होने का. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज हम अभी देखेंगे, सो आपको अच्छे से आइडिया है. बट बिफोर दिस सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर कर लेते हैं. ओके, so this is till here it is of your textbook points. Now let's discuss some few more extra points जो कि आपको MCQ के लिए, नीट के लिए स्पेशली काम आएंगे. So this color blindness disorder is discovered by the Horner, scientist name है ये. And the 3 types of color blindness are there. पहला है प्रोटोनोपिया जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी रेड कलर की डिफेक्ट होती है उनको. ठीक है, दूसरा है ड्यूटेरोनोपिया जो कि ग्रीन कलर के लिए है. द थर्ड वन ट्रिटेनोपिया जो कि ब्लू कलर के लिए डिफेक्ट है वो शो करता है. ओके, तो ये कलर के हिसाब से आपको नेम याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए. एंड द लास्ट, द कलर ब्लाइंडनेस इज चेक्ड बाय इशिहरा चार्ट. तो ये डॉक्टर है वो पता कैसे करते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज कलर ब्लाइंड और नॉट. तो ऐसा एक चार्ट आता है, इशिहरा चार्ट बोलते हैं जिसको, जिसके थ्रू डॉक्टर से वो पता करते हैं वेदर दिस पेशेंट इज कलर ब्लाइंड और नॉट. तो अभी मैं इमेजेस में आपको दिखा रही हूँ ये किस टाइप के चार्ट होते हैं. सो लेट्स सी, बट नाम याद रखना है आपको, इशिहरा चार्ट. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो चार्ट है उसे ही बोलते हैं इशिहरा चार्ट, जो कि कलर ब्लाइंडनेस डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, नाउ हाउ इट वर्क्स, सो लेट्स सी. जैसे कि आप पहला ये सर्कल देख रहे हो, उसमें आपको अगर दिख रहा है, देन बीच में सेंटर में रेड सारे डॉट से, उसमें बीच में ग्रीन डॉट से कुछ नंबर लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल है, वो है 7. ठीक है, होप यू ऑल कैन सी, बिकॉज दिस इज द चार्ट टू आइडेंटिफाई द कलर ब्लाइंडनेस. सो अगर आपको नहीं दिख रहा है, देन इट मीन्स यू आर अ कलर ब्लाइंड पर्सन, राइट. सो होप यू ऑल आर नॉर्मल. ओके, सो सबसे पहला चार्ट है, उसमें बीच में 7 नंबर का एक न्यूमेरिकल लिखा है. तो अगर मान लो किसी भी पर्सन में अगर ये कलर ब्लाइंडनेस है, देन दैट पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश दिस रेड डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स डिफरेंस, राइट. तो उनको ये पता नहीं चलेगा डिफरेंस. तो इसका मतलब वो ये नंबर है वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, उनको दिखेगा ही नहीं कि बीच में ये 7 नंबर कुछ अलग कलर से लिखा है. ठीक है, तो अगर ये ग्रीन डॉट की कुछ खामी है, उनमें कलर ब्लाइंडनेस है वी कैन से, देन उनको ये नंबर है वो नहीं दिखेगा. ठीक है, दूसरा है जो कि देखते हैं हम नीचे, तो सारे ग्रीन डॉट के बीच में रेड डॉट से एक नंबर है अगेन लिखा हुआ है जो कि है 8, राइट. तो ये 8 नंबर सी, अगर किसी पर्सन को रेड कलर की खामी है कुछ, उनको ये नहीं दिख रहा है रेड कलर, देन इट मीन्स उनको ये 8 नंबर है वो नहीं दिखेगा. उनको ये सब एक ही कलर का एक धब्बा जैसा ही दिखेगा, उनको ग्रीन एंड रेड कलर है वो नहीं दिखेंगे. स्पेशली वो अलग तो उनको बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे दैट विच कलर इज रेड एंड विच कलर इज ग्रीन. ओके, सो उनको ये नंबर नहीं दिखेगा. सो उससे डॉक्टर कैन आइडेंटिफाई वेदर दैट पर्सन कैन हैव अ ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड कलर ब्लाइंडनेस और वॉट एवर, सो ऑन, राइट. नेक्स्ट अगेन दूसरा है जहाँ पे नंबर लिखा है रेड कलर से 30.
ओके, सो ये भी सेम बीच में, क्योंकि रेड डॉट्स हैं, पूरा बड़ा ब्लैक सर्कल है, उसके बीच में रेड कलर के डॉट से कुछ नंबर लिखा है, जैसे कि नंबर है 30। तो ये भी है वो पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्टली अगेन रेड डॉट्स के बीच में ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, द नंबर इज 12। सो ये भी जो पर्सन है जिनको ये डिसऑर्डर है उनको ये नहीं दिखेगा, राइट। तो बाय दिस काइंड ऑफ चार्ट्स, देर आर मेनी चार्ट्स लाइक दैट बट ऑलमोस्ट आर सिमिलर, ठीक है। उनमें कॉन्सेप्ट यही है कि ये कलर से दिखाना है पेशेंट को कि उनको ये नंबर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो कॉन्सेप्ट इज सेम, चार्ट्स कैन बी ए डिफरेंट। सो लाइकवाइज ऐसे चार्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं इशिहारा चार्ट्स, बाय विच डॉक्टर्स कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर दैट पर्सन कैन हैव अ color blindness or not. Okay, and which color blindness, not only a color blindness but which color blindness, वो भी उनको पता चलता है by this kind of charts. Okay, now let's talk about the probabilities जिसकी वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस होती है या तो नहीं होती है ऑफस्प्रिंग में पास हो, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये कुछ इधर हमने 4 प्रोबेबिलिटीज है वो दिखाई है, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इधर जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, पहले तो ये साइंस देख लो। जैसे कि पहला है, अगर नॉर्मल दिखाना है मेल या फीमेल तो वो हम स्क्वायर करेंगे, जैसे कि पेडिग्री चार्ट आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर मेल को दिखाना है तो हम स्क्वायर जैसा कुछ करेंगे, और फीमेल को दिखाना है देन विल डू अ सर्कुलर साइन, ओके। तो अगर नॉर्मल है दोनों मेल एंड फीमेल देन उसको हम पूरा ब्लैंक रखेंगे, खाली रखेंगे। अगर एबनॉर्मल है इट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर दोनों को कलर ब्लाइंडनेस है वेदर मेल और फीमेल, तो उनका जो ये साइन है उनको हम फिल कर देंगे। इधर रेड कलर से फिल किया, यू कैन डू विथ एनी कलर, राइट, बट फिल करना है पूरा। एंड इफ द फीमेल इज कैरियर देन कुछ अलग कलर है वो हमने साइन किया है, तो उसे बोलते हैं कैरियर फीमेल, ठीक है। यानी कैरियर मीन्स व्हाट, कि उनमें एक डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, but that person or that individual is normal because they don't have 2 X chromosome defected one. So one is dominant and that one is normal, so that person can only be a carrier but not having any kind of disease, ठीक है। तो ऐसे फीमेल में होता है कि फीमेल में 3 पॉसिबिलिटीज है, either they can be a normal और अ कैरियर और अ डिसीज्ड वन। वाइल इन केस ऑफ मेल, क्योंकि उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो उनके पास कुछ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है नहीं दूसरा, तो या तो उनको सीधा ही डिसीज हो जाएगा या तो फिर वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ मेल देर इज लेस, वेरी रेयर और नो चांसेस ऑफ हैविंग अ कैरियर वन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, देर आर 4 प्रोबेबिलिटीज। सबसे पहला हम देख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर मेल, क्योंकि XY क्रोमोसोम है तो वो मेल है यानी फादर है, एंड फीमेल जिसमें आप XX क्रोमोसोम, यानी कि ये कैरियर की साइन है, जो कि आप पास में से देख सकते हो साइंस, राइट। तो मान लो ऐसे कोई मदर एंड फादर हैं, जो कि फादर है वो है नॉर्मल और मदर है वो कैरियर है, तो उनके ऑफस्प्रिंग में ये डिसीज रिलेटेड कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। सो उनमें मान लो अगर लड़का हुआ उन्हें, यानी बेटा है, सन है, ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम तो उनको फादर में से ही आना है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। इसका मतलब उनमें एक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ से आएगा, मदर में से ही आएगा अगर बेटा है तो मदर है वो कैसी है, कैरियर है, यानी 1 आप देख सकते हो, एक एक्स डैश एंड एक्स, ऐसे 2 क्रोमोसोम दिखाएं। एक्स डैश मीन्स वो डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है, और नॉर्मल एक्स मतलब उसमें कुछ डिफेक्टेड जीन्स नहीं है। तो मान लो अगर डिफेक्टेड एक्स डैश है वो आ जाता है किसी लड़के में, क्योंकि वाई तो है उनको फादर में से मिल रहा है, बट एक्स क्रोमोसोम आएगा मदर में से, और मदर में से मान लो डिफेक्टिव आ गया, देन इट मीन्स दैट सन कैन बी अ कलर ब्लाइंड, राइट। दूसरी प्रोबेबिलिटी है, फादर में से तो वाई नॉर्मल ही आ रहा है, मदर में से भी मान लो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल आ गया, तो दैट इज नॉर्मल। अब गर्ल में क्या क्या चांसेस है, तो गर्ल में मान लो एक एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि फादर तो अगेन नॉर्मल ही है तो फादर में से एक्स क्रोमोसोम आएगा वो नॉर्मल ही आएगा, बट मदर में से मान लो डिफेक्टिव आया, देन दैट गर्ल कैन बी अ कैरियर, और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है देन दैट गर्ल कैन बी अ नॉर्मल चाइल्ड। तो इसमें प्रोबेबिलिटीज क्या हुई कि 50% चांसेस ऑफ सन्स हैविंग एबनॉर्मल कलर विजन व्हाइल द 50% चांसेस ऑफ डॉटर्स बीइंग कैरियर, ठीक है। यानी 50% अगर सन हुआ उनको, अगर बेटा हुआ
तो उनके 50% चांसेस है कलर ब्लाइंड होने के, ठीक है। या तो फिर बेटी हुई तो उसमें 50% चांसेस है कैरियर होने के, वो कलर ब्लाइंड नहीं होएगी लड़की। क्यों? क्योंकि मदर में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, फादर तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, यानी दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो लड़की में यानी बेटी में नॉर्मल ही रहेगा, तो उनको डिसीज तो कभी नहीं होगा, बट इट कैन बी अ कैरियर, राइट, शी कैन बी अ कैरियर वी कैन से। सो पहली प्रोबेबिलिटी ये है। तो आपको ऐसे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ अ फादर इज नॉर्मल एंड मदर हैविंग अ वन डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, इट मींस अ मदर इज अ कैरियर, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है 50% चांसेस ऑफ सन हैविंग एबनॉर्मल कलर विजन, 50% चांसेस ऑफ डॉटर्स बीइंग कैरियर, राइट। तो ये बात हुई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की। सेकंड देखते हैं हम। सो सेकंड प्रोबेबिलिटी इज, जिसमें इधर आप देख सकते हो कि फादर है वो कलर ब्लाइंड है क्योंकि वो पूरा हमने फिल किया है, मदर है वो नॉर्मल है, ठीक है, यानी दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। तो इन दैट केस उनके अगर बेटे हो रहे हैं यानी सन हो रहे हैं, चाइल्ड सन हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल होंगे। क्यों? क्योंकि फादर का वाई क्रोमोसोम तो डिफेक्टिव है ही नहीं, ये एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसीज है, तो वाई तो नॉर्मल ही आया और मदर बिल्कुल ही नॉर्मल है, तो उनमें से जो एक्स आया वो भी नॉर्मल ही आया। सो इन सच केसेस अगर सन चाइल्ड हो रहा है, बेटा हो रहा है, तो वो नॉर्मल ही होगा। अगर लड़की हो रही है देन शी मस्ट बी अ कैरियर, क्योंकि मदर में से जो एक्स क्रोमोसोम आएगा वो तो नॉर्मल ही आएगा, बट फादर का एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा है, डिफेक्टिव है, तभी तो फादर को कलर ब्लाइंडनेस है। तो एक एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, एक एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, इसका मतलब डॉटर को डिसीज नहीं होगा, बट वो कैरियर तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो इन सच प्रोबेबिलिटी इन विच फादर इज हैविंग कलर ब्लाइंडनेस व्हाइल मदर इज अ नॉर्मल, देन देयर ऑफस्प्रिंग में चांसेस है कि 100% चांसेस सन्स हैविंग नॉर्मल कलर विजन, लड़के को किसी को भी डिसीज नहीं होगा, एंड 100% चांसेस ऑफ डॉटर्स बीइंग कैरियर्स, लड़की होगी तो वो होगी ही होगी कैरियर, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं हो सकती क्योंकि फादर का एक एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मल ही है। ओके, तो ये होगी दूसरी प्रोबेबिलिटी। लेट्स सी द थर्ड प्रोबेबिलिटी। तो अगेन अभी इसमें देखो आप कि फादर हैं वो कलर ब्लाइंड है यानी उनका एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, मदर है वो कैरियर है, ठीक है, तो यानी एक एक्स क्रोमोसोम इधर भी डिफेक्टिव है, एक एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। तो हम सन की बात करें, अगर उनको लड़के हो रहे हैं चाइल्ड में, तो पहला चांस है कि मान लो फादर में से तो वाई नॉर्मल आया बट मदर का एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो डिसीज हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा अगर वाई क्रोमोसोम नॉर्मल बट मदर में से नॉर्मल एक्स आ रहा है, तो 50% चांसेस है सन के नॉर्मल होने के और 50% चांसेस है कलर ब्लाइंड होने के। नेक्स्ट, अगर मान लो गर्ल चाइल्ड हो रही है, देन फादर कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब 50% चांसेस है कि दोनों मदर में से भी डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आए, फादर में से भी डिफेक्टिव आए, तो उनको डिसीज हो जाएगा गर्ल को। अगर फादर का तो डिफेक्टिव ही आएगा क्योंकि उनको कलर ब्लाइंडनेस, बट मदर में से नॉर्मल एक्स आ रहा है, तो दैट गर्ल कैन बी अ कैरियर, राइट। तो बॉय अगर हो रहे, सन हो रहे, मेल चाइल्ड हो रहा है, तो उसमें 50% चांसेस है कि वो लड़का नॉर्मल हो और 50% चांसेस है उसको डिसीज हो जाए। बट अगर लड़की हो रही यानी गर्ल चाइल्ड हो रही है, देन या तो उनको डिसीज होगा या तो वो कैरियर होगी, बट वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकती है इन दैट केस, राइट। एंड द लास्ट प्रोबेबिलिटी, अगर फादर है वो नॉर्मल है, ठीक है, मदर है वो कलर ब्लाइंड है, तो इन दैट केस ऑल्सो जो भी सन होंगे वो दोनों है वो, यानी दोनों प्रोबेबिलिटीज है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस होगी क्योंकि मदर डिफेक्टिव है, यानी मदर में दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, तो सन में एक तो एक्स क्रोमोसोम आना ही आना है और सन में सिर्फ एक ही चाहिए एक्स क्रोमोसोम डिसीज कोज करने के लिए, ठीक है। तो वो अगर ऐसा कोई भी केस है कि फादर बिल्कुल ही नॉर्मल है बट मदर कलर ब्लाइंड है, तो अगर उनको बॉय चाइल्ड होता है देन वो 100% कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। बट अगर गर्ल चाइल्ड हो रही है तो वो 100% है वो कैरियर ही होगी। क्यों? क्योंकि मदर में तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, तो एक तो आना ही है ना गर्ल चाइल्ड में मदर में से, तो यानी वो डिफेक्टिव होगा। फादर बिल्कुल नॉर्मल है तो एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल ही आएगा, एक एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव ही आएगा मदर में से, तो ऐसी गर्ल चाइल्ड है वो नॉर्मल ही होगी। तो जैसे कि
आपने देखा हमने 4 प्रोबेबिलिटीज की बात की, उसमें से सिर्फ एक ही केस में पॉसिबिलिटीज है गर्ल को डिसीज होने की, ये थर्ड वन सी जो भी हमने देखा उसमें, कि जब फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर है वो कैरियर हो, इन दैट केस ओनली गर्ल चाइल्ड को डिसीज हो सकता है। बाकी सब में मोस्टली गर्ल चाइल्ड है वो कैरियर होगी बट उनको खुद को डिसीज नहीं होगा। दैट इज वाई द रेशियो इज सच कि बॉयज़ में जनरली कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा देखने को मिलती है, वाइल इन केस ऑफ गर्ल्स बहुत ही रेयर होता है। ओके तो ऐसे कुछ एमसीक्यूज है जो कि आपको पूछे जाएंगे, जो कि प्रोबेबिलिटीज है। तो हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस 1। तो इफ मदर इज नॉर्मल एंड फादर इज कलर ब्लाइंड देन सन विल बी नॉर्मल एंड डॉटर विल बी कैरियर। ये अभी आपको मैंने प्रोबेबिलिटी समझा दी, तो आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू में सीधा ही पूछेंगे आपको, ठीक है। दूसरा है टेस्ट क्रॉस 2। सो इफ मदर है वो कैरियर है एंड फादर है वो कलर ब्लाइंड है, तो उस केस में, जो कि हमने अभी वापस मैंने रिवाइज करवाया आपको, कि 50% चांसेस है डॉटर के कलर ब्लाइंड होने के और कैरियर होने के, और 50% चांसेस है कि सन है वो या तो नॉर्मल हो या तो कलर ब्लाइंड हो, ठीक है। ये रेशियोज आपको सीधे याद रखने एमसीक्यू के लिए, जो कि मैंने अभी आपको प्रोबेबिलिटी समझा दी सारी विथ एग्जाम्पल, बट एमसीक्यू के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट, इफ मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल, तो उसका मतलब all sons will be a color blind and all daughters will be a carrier, ठीक है। तो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेस्ट क्रॉस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 4 प्रोबेबिलिटीज। तो उस हिसाब से आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि फादर एंड मदर की कंडीशन क्या है, जिसकी वजह से उनके जो भी ऑफस्प्रिंग हो रही है, वेदर अ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड, तो उनमें चांसेस है वो क्या रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। Here we have covered all your textbooks points as well as MCQ based theory as well as some extra points also regarding your competitive exam. So this is all about color blindness disease, ठीक है।